نے جوائن کر لیا. یہ والدہ ہیں سلمان طاہر کے جو MBBS 4th ایئر اسٹوڈنٹ تھے اور یہ بھی کرونا کے آگے اپنی شہید ہو گئے. تو ہم ان سے بات, یہ ڈاکٹر صاحبہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, ہر ہسبینڈ از اے پروفیسر. طاہر سلیم صاحب دونوں ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی کرونا ہے. ایک تو میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کرونا کو ایک اسٹیٹسٹک سمجھنا چھوڑ دیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کا انسانی چہرہ ہے, جس کا دکھ درد ایک انسان کا دکھ درد ہے, اور ہمیں اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے. ہم کسی اور سے نہیں بات کرتے. سب سے مشکل کانورسیشن ہوتی کسی کے لیے بھی, میرے لیے بھی, کہ میں کسی ایسی ماں سے بات کروں جن کا انہوں نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہو. آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف سو آئی نو دا پین. ڈاکٹر شبنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی آئی کین ہیئر یو. بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے گفتگو کے لیے وقت نکالا. یہ کرونا پہ بڑا لوگوں کا ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے, جیسے بس کرونا کا کیا ہے, ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. سڑکوں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں, کچھ پرواہ نہیں ہے. بطور ڈاکٹر اینڈ بطور ماں تو ہمارے سے شیئر کریں کہ یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور بہت سی اور ماؤں کے ساتھ ہو چکی ہے, اور خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی ہمیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شبنم طاہر ہے اور میں گائنی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں لاہور میں کہ ایک نجی ہاسپٹل میں. میرے لیے بہت مشکل تھا. ابھی پرسوں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, کل میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور آج میرے لیے اس طرح دوسروں کو فیس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن میں سمجھتی ہوں بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل کہ اس ٹائم پہ اگر میری کوئی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شاید دوسروں کے ساتھ نہ ہو. میں ایز اے مدر اور ایز اے ہیلتھ پروفیشنل دونوں چیزیں اپنے ایک ہفتے کا جو ایکسپیرئنس ہے میں وہ چاہوں گی کہ میں آپ کو مختصراً آپ کو بیان کر سکوں, اور اس کے بعد جو کنکلیوژن میں نے اس سے نکالا ہے وہ شاید دوسروں کے کام آ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا سلمان طاہر جس کی عمر 21 سال اور چند مہینے تھی, وہ بالکل صحت مند بچہ تھا. اس میں کسی قسم کا رسک فیکٹر موجود نہیں تھا, جو کہ ایک عام مت ہے کہ کرونا ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جو جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے, یا جن کو آلریڈی کوئی ایسی سکنس چل رہی ہوتی ہے. تو سلمان طاہر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی بہت ہی ایک ورسٹائل قسم کا بچہ تھا, پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا, اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا. وہ سپورٹس میں بھی آگے تھا, وہ باقی دنیا کے بچوں کی طرح کھیل کود بھاگ دوڑ ہنسی مذاق ہر چیز میں اس کے بہت سارے خواب تھے. وہ انسٹیٹسٹ بننا چاہتا تھا, وہ باہر جانا چاہتا تھا, وہ لونگ تھا, وہ کیئرنگ تھا. تو ہوا کیا میرا بچہ, تو ہم تو لاک ڈاؤن میں تھے اینڈ وی ور اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لاک ڈاؤنس. میرا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور کالج بند ہے, سو ہی واز ایٹ ہوم, گھر پہ تھا. اس پورے لاک ڈاؤن کے دوران اس کی سکنس سے ہو سکتا ہے چند دن پہلے افطار کے بعد ونس اور ٹوائس میں بھی وہ باہر گیا ہو کہ لاک ڈاؤن میں بچہ بہت تنگ ہو گیا ہے. لیکن میں نے اس سے انکوائر کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اور اپنے 1-2 فرینڈس کے ساتھ, اور کسی سے ایسی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو کاف ہو, کھانسی ہو, یا اس کو کوئی کانٹیکٹ کا اس کو ہو. اور باقی گھر آ کے ہینڈ واشنگ اینڈ اسٹرلائزیشن ہر چیز جیسے ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے, ہی واز فالوئنگ بیکاز ہی ہمسیلف واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. عید میرا بیٹا چاند رات کو عید اناؤنس ہونے کے بعد میرا بیٹا چاند رات منانے کے لیے کہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی وینٹ آؤٹ, اور 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا. چاند رات تک میرے بیٹے میں کوئی سمٹمز نہیں تھے, اس کو کوئی فیور کاف فلو ناتھنگ, اس کو کچھ بھی نہیں تھا. عید کی صبح وہ نہیں اٹھا یا لیٹ اٹھا. انکوائر کرنے پہ اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ
हेड एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, कोई और मैंने पूछा प्रॉब्लम नहीं है, तो पेनाडॉल दे दी गई। 2-4 घंटे के बाद ही सेट कि मेरा फ्रंटल हेडेक नहीं सेटल हो रहा, तो मैंने एक ब्रूफिन की टैबलेट उसको दे दी, कुछ थोड़ा सा खाने को लिया और उसके बाद वो सारा दिन सोता रहा। शाम को मैंने फिर पूछा तो उसने कहा मुझे सिर्फ हेडेक हो रहा है। मैंने एहतियाती तौर पे टेम्परेचर चेक किया तो 99 टेम्परेचर था। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा वरीड हो गई कि उसको टेम्परेचर है, तो मैंने उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया और ख़ुद एज ए मदर, क्योंकि ईद का डे था और इतना जल्दी 99 फीवर और हेडेक पे मैं उसको कहीं पे इस तरह ले जा नहीं सकती थी, मैं उसको खुद ऑब्जर्व कर रही थी। नेक्स्ट जो 24 आवर है, ईद और ईद से अगला दिन वो घर पे ही था और उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी कि मुझे फ्रंटल हेडेक है, और इसके साथ उसको फीवर 100 and 101 तक हो गया और उसकी नेक स्टिफनेस स्टार्ट हो गई, यानी उसकी गर्दन में स्टिफनेस आ गई, अकड़ना शुरू हो गया। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर ये 3 चीज़ें साथ हों तो हमारा पहला डाउट जो है वो गर्दन तोड़ बुखार की तरफ जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो पीडियट्रिशियन है, वी थॉट कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मेनिंजाइटिस डेवलप हो रहा है इसको, लेकिन उसको कोई वॉमिटिंग उल्टी नहीं थी, अदरवाइज ही वाज ओके, और बीच बीच में से कुछ खा भी लेता था। सो वी थॉट कि थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लेते हैं हम उसको पेनाडॉल देते रहे, लेकिन कीपिंग इन माइंड द सस्पिशन ऑफ कोविड इन्फेक्शन हमने उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया और उसको मैं अटेंड करती थी विद ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर वी कंसल्टेड द फिजिशियन ने कहा कि ये सारे सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के हैं, गर्दन तोड़ बुखार के हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशंस भिजवा दिए। हमने घर पे ही चुगताई लैब के बुलवाया, बच्चे का सैंपल लिए, सिंपल जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, और 2-4 घंटे में रिपोर्ट्स आ गई जिसमें कंफर्म हुआ कि उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पिक्चर लग रही है, क्योंकि हेडेक है, नेक स्टिफनेस है और फीवर है। इसके अलावा कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, बॉडी एक्स पेन्स जो रूटीन में कोरोना के सिम्टम्स जाने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो ही हमें रिपोर्ट मिली हम 30 मिनट में उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में उसका लंबर पंक्चर हुआ, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला और उसके बाद उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी गई और उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसको रूम में किसी किस्म का, मैं उसके पास थ्रू आउट रही हूँ, उसको कोई खांसी, नज़ला, जुकाम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको एंटीबायोटिक्स लगने के बाद और पैरासीटामोल मिलने के बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। अगले दिन उसको फिजिशियन ने देखा और लंबर पंक्चर की रिपोर्ट आ गई उसकी, जिसपे उसका वायरल मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ कि उसको गर्दन तोड़ बुखार है, वायरल मेनिंजाइटिस। इसलिए उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। इसके साथ चूंकि मैं वेरी क्लोज टू द पेशेंट थी तो मैंने देखा उसकी एक आंख सूजना शुरू हो गई है। मुझे ये थोड़ा अनयूजुअल लगा, तो न्यूरो फिजिशियन को कॉल किया, उन्होंने आके देखा, उन्होंने सीटी स्कैन एडवाइस किया। सीटी स्कैन वाज कम्प्लीटली ओके। सो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यही हेड मेनिंजाइटिस है, इसके साथ थोड़ा शायद ये इस तरह का हो रहा है, तो आप यही मेडिसिन कंटिन्यू रखें। और कोविड का हमने कहा तो उन्होंने कहा कोविड का कोई सस्पिशन नहीं लगता, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा। लेकिन चलें चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं। तो चेस्ट एक्सरे जब कराया तो उस पर एक पैच आया, सिंगल एक आध पैच आया, तो वो कहने लगे कि ये कोई साथ निमोनिया की पिक्चर भी लग रही है। और अब जब हमने एक्सरे पे वो पैच देखा तो हमें डाउट हुआ कि ये कोविड इन्फेक्शन हो सकती है। साथ ही कोविड का टेस्ट भी भिजवा दिया गया और उसके बाद ये सारी ट्रीटमेंट उसको चलती रही और उसको रूम में हम मॉनिटर करते रहे। नेक्स्ट अनदर 24 आवर्स के अंदर एंटीबायोटिक्स तो जा रही थी, उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए, उसका रेस्पिरेटरी रेट तेज होना शुरू हो गया, उसको ऑक्सीजन के बगैर वो ब्रेथलेस हो जाता। पहले 4 लीटर, 5 लीटर एंड देन 10 लीटर्स तक वो जाना शुरू हो गया। एंड ग्रेजुअली बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ऑब्जर्विंग, तो मैंने देखा कि वो डिफरेंट चीज़ें, उसका हार्ट रेट तेज हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो रहा है, वो कोल्ड एंड क्लैमी है। तो मैंने जो कंसल्टेंट के साथ कि मुझे लगता है कि ये सेप्सिस में जा रहा है, ये शॉक में जा रहा है, ये डीआईसी में, तो वो तमाम पिक्चर इन्वेस्टिगेशंस जब आई तो पता चला कि यके बाद दीगरे ऊपर नीचे डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती जा रही हैं। मीनवाइल कोविड की रिपोर्ट भी आ गई जो कि पॉजिटिव थी, तो उसको कोविड के लिए शिफ्ट करा दिया गया। एंड देन इट टुक ओनली 12 आवर्स, और हर 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जो एक्सरे हुआ वो पहले से बुरा था और उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती चली गई। And he developed all the complications, including DIC, including the sepsis,
meningitis, encephalitis and pneumonia and फिर उसके lungs from being a perfectly healthy young man से आखिरी लम्हे तक ये टोटल साइकिल कितने दिन का था? जी ये टोटल इसको जो है वो टोटल अगर आप पहला दिन ईद वाला दिन छोड़ दें तो उसके बाद 72 आवर्स का टाइम लगा है, 72 आवर्स। इसमें सारे डॉक्टर्स इवन फिजिशियंस वो इतना हैरान थे कि एक हेल्दी बच्चा जो है वो उनका ख्याल था कि ये कोविड इन्फेक्शन हो ही नहीं सकती, ये है ही मेनिंजाइटिस। तो उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम वर द लास्ट सिम्टम्स जो अपीयर हुए। अब मैं अपने बेसिकली आज जो मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए विलिंग हुई हूँ, मैं 2 बातें कन्वे करना चाहती हूँ। जब मेरे बेटे का कोविड पॉजिटिव आया तो हम सब के कोविड की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें मेरे हस्बैंड की कोविड की स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई। दिस मीन माय हस्बैंड इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी आम लोगों की तरह घूम फिर रहे हैं। वो एक निजी अस्पताल में पीडियाट्रिशियन है और अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स देखते हैं। हम अपने क्लिनिक पे पूरे कोविड के प्रोटोकॉल के साथ मरीज देखते हैं। क्लिनिक सैनिटाइज किया हुआ है, 1 बाय 1 तमाम प्रोटोकॉल लिख के लगाए हुए हैं। मरीजों को 1 बाय 1 आने को कहते हैं, उनको कहते हैं मास्क के बगैर एंटर ना हो। लेकिन जो 2 महीने में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं कि लोग मास्क पहन के आने को तैयार नहीं हैं। अगर मास्क पहन के आते हैं, जब मेरे सामने बैठते हैं तो नाक पे रखने को तैयार नहीं है और हमें फोर्स किया जाता है कि अटेंडेंट भी हमारे साथ आएगा, अंदर आएगा। और इसके अलावा जो है डिस्टेंस रखने पर भी कोई जो है वो राजी नहीं है। अगर उनसे कहो अपनी गाड़ियों में वेट करें और 1 बाय 1 आए, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करने को तैयार नहीं है। अब मेरे बेटे को कोविड इन्फेक्शन कहाँ से लगी, इसके सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं। एक 2 दफा जो इस पूरे लॉकडाउन में फॉर 1 घंटे 30 मिनट के लिए वो बाहर निकला, मुझे नहीं पता उसमें मैं भी, लेकिन जाहिर है कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 5 to 14 डेज है, तो कोई उससे पहले कोई बहुत ज्यादा उसकी कहीं हिस्ट्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बीइंग ए डॉक्टर, हम इन स्पाइट ऑफ टेकिंग हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, बट समवेयर कहीं तो कुछ हुआ है कि हम एज ए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वी केम इन आवर होम। बच्चों को लॉकडाउन में रखा हुआ है एंड किसी बच्चे ने हमसे इन्फेक्शन कन्वे की और उसको कोविड इन्फेक्शन हो गई। मेरे बच्चे में कोई रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं था। अब मैं इस बिहाफ पे कुछ बातें कन्वे करना चाहती हूँ, कुछ मिथ्स दूर करना चाहती हूँ। प्लीज इसको ओल्ड एज की बीमारी मत तस्वर कीजिए कि ये सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोगों को होगा। अगर ये 18 साल, 17 साल और 21 साल के बच्चों को इफेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब है कि कोरोना के लिए कोई एज जो है ना वो मुकर्रर नहीं है। दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है ये उसको इन्वॉल्व ना करे। ये एक नई डिजीज़ है। आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी वजह से वो घुटने टेक चुके हैं। कहीं पर इस पे काबू पाना जो है वो लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने दुख का इजहार कर सकूं। मुझे पता आप क्या विद इन 76 घंटे में एक सेहतमंद खूबसूरत 21 साल का नौजवान आपका बेटा चला गया और उसके 24 घंटे के बाद आप बैठी हुई हैं और लोगों से बात कर रही हैं, समझा रही हैं। अल्लाह आपको और भी सब्र दे। और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज कोरोना को आप कोई, मैं जब पढ़ती हूँ कि कोरोना एक ड्रामा है, कोरोना के बदले पैसे मिलते हैं, मुझसे आज सब कुछ आप ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ कोई ले ले, मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, मेरा ख्वाब मुझे वापस कर दे। ऐसी बात नहीं है, ये मिथ है। और एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोग कहते हैं जो मरीज जाता है उसको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। आजकल की पेंडेमिक को सामने रखते हुए प्लीज कीप द इंडेक्स, सस्पिशन ऑफ इंडेक्स को हाई रखें। मेरे बेटे में कोरोना को लास्ट पे रखा गया, वायरल मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस को नंबर 1 और 2 रखा गया। मैं कहती हूँ कोरोना को नंबर 1 रखिए, फिर मेनिंजाइटिस और फिर एंसेफेलाइटिस कीजिए। पहले दिन कोविड का टेस्ट भेजिए, फिर लंबर पंक्चर कीजिए।
स्क्रीनिंग ज्यादा कीजिए, जो मरीज जिस कंप्लेंट के साथ आता है उसमें कोविड सस्पेक्ट कीजिए। तो ये वाली बात कि हर मरीज को कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि उसको कोरोना है, हमें नहीं पता कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, तो इसलिए जो मरीज जाए उसको कोरोना के खाते में डालना इसलिए जरूरी है कि कोई भी मरीज कोरोना का इस पेंडेमिक में हो सकता है। और इसके अलावा एक और बात उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें एक्सपो सेंटर में रखा हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। तो मेरे हस्बैंड भी तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो एक कमरे में बंद हैं जिस दिन से मेरे बेटे की डेथ हुई है। वो हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं, हम खाना उनके कमरे के आगे रख देते हैं, ना वो कमरे से बाहर आते हैं, ना हम बेटे की डेथ के बावजूद हम गले मिल के रो नहीं सके। हमने अपने बेटे की बरियल तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के थ्रू की है हमने। तो मेरे हस्बैंड इज इन आइसोलेशन, जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता ना वो हमसे मिलेंगे और ना ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। मैं अपने बेटे के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में रही हूँ। मेरा इनिशियल टेस्ट नेगेटिव है, बट आई शैल वेट फॉर अनदर टेस्ट कि मैं 10 डेज के बाद अनदर टेस्ट कराऊं। अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव होगा तो मैं अपनी ड्यूटी पे को ज्वाइन करूंगी। तो हम लोग बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, हम लोग जो है, हम देखिए मेरा टेस्ट अगर नेगेटिव आता है या मेरे हस्बैंड का, तो हमें फिर जाना है और फिर काम करना है। जैसे जंग में कोई सिपाही बॉर्डर नहीं छोड़ सकता, हम बीइंग ए डॉक्टर अपना काम नहीं छोड़ सकते। मेरा बेटा चला गया है तो क्या मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना काम जारी रखूंगी, मेरे हस्बैंड अपना काम जारी रखेंगे। तो लोगों से यही कहना है कि हम अपना काम जारी रखेंगे अब इन कुर्बानियों के बावजूद, लेकिन प्लीज खुदारा आप लोग उन तमाम प्रिकॉशंस को लीजिए जिससे डॉक्टर्स मिनिमल इफेक्ट हों। आप क्लिनिक्स में जाएं, अस्पतालों में बच्चे मत लेके जाएं। गैर जरूरी बीमारियों के साथ क्रॉनिक बीमारियां, अगर किसी का 18 साल से बच्चा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगले 6 महीने अस्पताल ना जाएं। मैं पिछले 2 महीनों में देख रही हूँ, मना कर रही हूँ, मेरे पास इनफर्टिलिटी के मरीज आ रहे हैं कि हमारा 10 साल से बच्चा नहीं है और ट्रीटमेंट। तो मैं सबको कह रही हूँ आप 6 महीने रुक जाएं। आप कोल्ड डिजीजेस के लिए मत आएं हॉस्पिटल, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए आएं। प्लीज बच्चों को साथ मत लाएं। बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, उन बच्चों में कम है मोर्टेलिटी, बट दे कन्वे द डिजीज। डॉक्टर शबनम, देखिए जब तक हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं समझेंगे, बिल्कुल आपका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। मुझे तो जी मैं तो आई बी टोटली ऑनेस्ट, मैं आई एम शॉक्ड एंड अमेज्ड कि आप में अल्लाह ने इतना हिम्मत दिया, जज्बा दिया है कि आप बात कर रही हैं। मेरा आई हैव अ 21 ईयर ओल्ड सन, मेरे में सुनने की हिम्मत नहीं है जी। चले आपका बहुत शुक्रिया, को नहीं समझेंगे जी। आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको सब्र दे और लोगों को हिदायत दे। वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। वी नीड अ ब्रेक। आओ आगे बढ़ें और हमदर्द बनें।